how to impose the taxes. How to impose taxes. Now, in order to understand this, how to impose the taxes, so there's a smaller story. For example, there's Mr. X, and he is earning 600 rupees daily. He's a daily wager and he is earning 600 rupees daily on a daily basis. Now, what income tax department asks Mr. X? Income tax department asks Mr. X that you are required to pay taxes on a daily basis. यानी जो भी आप 600 rupees आप earn कर रहे हैं daily के, you now need to pay the income tax on a daily basis. जैसे ही Mr. X ने 600 rupees earn किए, now income tax officer will come to him and he will ask for the taxes. Now, if you look at this procedure, don't you think this procedure is very, very difficult to adhere or very difficult to channelize? Don't you think that? Yes, sir. Right? Because you are charging the taxes on a daily basis. And when you are charging the taxes on a daily basis, it becomes very, very difficult for the income tax department, for you also to pay taxes. यानी कि आपका काम तो फिर होगा कि आप you are doing your office work. Now you are paying your taxes. You have no your personal life. So what income tax says, or I should rather say the government. Government says one thing. गवर्नमेंट कहती है देखो भाई आप क्या करो, आप पूरे साल इनकम कमाओ, राइट? आप इनकम अर्न करो पूरे साल, हम आपको कुछ नहीं करेंगे. इनकम, you earn income entire year. You won't say a word that you are now compelled to pay the tax income. Someone is asking for the entry. Swati Pal. Swati Pal. She is in our class? Yes, sir. यस सर, उसको शायद किसी ने रिमूव कर दिया, वो ऐसा बोल रही थी ग्रुप पे. किसी ने कौन रिमूव करेगा मेरे अलावा? पता नहीं सर, ऐसे बोल रही थी वो. उनसे बोलो ऐसा ना बोले कि सर ने रिमूव नहीं किया, ठीक है? Now, income earned entire year. So whatever income she has earned, or she or he earned entire year, गवर्नमेंट यदि आप पूरे साल इनकम अर्न करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ना उस इनकम का टैक्स हमें नेक्स्ट ईयर पे कर दो. Right? Sounds good. I mean, this is a more practical approach. Don't you think, class? कि आपने पहले पूरे साल इनकम अर्न की, then you are paying taxes for the next year. Now look at this. If I talk about this case, तो ये केस क्या रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? Yes. In reality, the government says the same thing. It says, first you earn the income for the entire year, then you can pay the taxes in next year within a specified period of time. We will give you the time period. So, गवर्नमेंट कहते हैं जिस साल आपने इनकम अर्न की उस ईयर को कहा जाएगा प्रीवियस ईयर. व्हाट? प्लस प्रीवियस ईयर. और जिस साल आपकी इनकम पर टैक्स देना है, मान लेते हैं कि आपने इनकम अर्न की 2019-20 में, इन 2019-20 you we have earned a income in 2019-20 and in next year यानी 2020-21 में अब आपको उस इनकम पे टैक्स पे करना होगा, which is known as assessment year. What class? Assessment year. Am I clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है हमें समझना जरूरी है. And these are the fundamental pillar of income tax. Without knowing this, without understanding them properly, you won't be able to calculate the taxes. You won't be able to understand the taxes, right? So we really need to understand these 2 points: previous year and assessment year. Now, you may ask the question, sir, for example, previous year, (2020-21). What does it mean? It simply means आपने इस साल इनकम कमाई होगी from which date? Now, when we say 2020-21, what does it mean? Are we following the financial year or the calendar year?
We are Financial year. very good. We are following financial year. ये आपको ध्यान रखना financial year, and which starts from 1st April to 31st March. 1st April of 2020, if this is the case, to 31st March of 2000. Wait a minute, 2020. Right. It means government says from this date till this date, whatever income you will earn, जो भी आप पैसा कमाएंगे इस दिन से लेकर इस दिन तक, यानी in 365, as a case maybe 366 days, whatever income you will earn in these 365 or 366 days, इसका टैक्स हम आपसे नेक्स्ट ईयर लेंगे, which is known as assessment year. Now, the following year is always the assessment year. Assessment year is the year in which we pay the taxes of previous year. Simple. Assessment year would be of 2021, 2022 class. सबको समझ आ रहा है? Yes, Right. sir. It means this assessment year will start from 1st April 2021 and it will end on 31st March 2022. अब आप ये कह सकते हैं सर हमने पूरे साल इनकम कमाई तो क्या पूरे साल सिर्फ हम टैक्स पे करते रहें, इस साल क्या हम इनकम अर्न ना करें? भाई क्वेश्चन ये हो सकता है ना, जो मैं आज दिस वेरी रीजनेबल क्वेश्चन कि क्या हम एक साल इनकम अर्न करेंगे अगले साल सिर्फ टैक्स पे करते रहेंगे, ऐसा कुछ है क्लास? लगता है no, sir. नहीं, तो फिर क्या लगता है क्या होगा? थिंक अबाउट So the assessment year will become the previous year for next नेक्स्ट फॉलोइंग assessment ईयर. year. वेरी गुड, वेरी गुड. गवर्नमेंट कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि आप एक साल अर्न करें फिर आप टैक्स दें, फिर उसके एक साल के बाद दोबारा अर्न करें फिर टैक्स. नो, द अर्निंग साइकिल विल ऑलवेज बी देयर, यानी अर्निंग साइकिल इज नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन इन बिटवीन. यानी कि आपने इस साल अर्न किया, आप इस साल टैक्स पे करें, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है. गवर्नमेंट ऑल्सो सेज भाई इतना सिंपल नहीं है ये. क्या आपकी मर्जी है कि आप कभी भी टैक्स पे कर दो नेक्स्ट ईयर? नो, वी विल गिव यू सम डेट्स, राइट? वी विल लेट यू नो कि किस डेट तक आप टैक्स पे कर सकते हो. नाउ रिमेंबर 7 टाइप ऑफ पर्संस. वी हैव 7 टाइप ऑफ पर्सन क्लास. नाउ लुक एट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल. फर्स्ट अगर मैं इंडिविजुअल की बात, मिस्टर एक्स की बात करूं और मैंने कहा कि ठीक है आपने कुछ पैसा अर्न किया मिस्टर एक्स, आप हमें टैक्स पे कर दो, आप अपनी इनकम को एसेस करो, वट एवर इनकम यू हैव अर्न इन 2020-21, नाउ यू आर obliged to pay us tax in 2021-22, यानी 1 अप्रैल 2021 के बाद से या उस दिन से आप हमें टैक्स पे करना शुरू कर सकते हैं, राइट? गवर्नमेंट ने कहा, आपने कहा कब तक? इस डेट तक. गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इस डेट तक नहीं, हम आपको एक डेट देंगे. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सेज 31st August 2021. Are you getting my point class? यानी कि 31st अगस्त 2021 तक आप अपनी इनकम टैक्स हमें पे कर दो. इट मींस गवर्नमेंट विल से अपनी आईटीआर फाइल कर दो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार ये दोबारा से बता दो, हाँ देखिए, थोड़ा समझ नहीं हमने आया. इस साल में पूरा इनकम अर्न किया. यस बच्चे, यस सर. गवर्नमेंट आपसे कहती है नेक्स्ट ईयर आप टैक्स पे करो. नेक्स्ट ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट 1st अप्रैल 2021. लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप 365 डेज में कभी भी आप टैक्स पे कर दो. नो, गवर्नमेंट सेज कि हाँ पूरा साल है, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए कुछ टाइम लिमिट है. गवर्नमेंट सेज कि ठीक है द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न विदाउट एनी पेनल्टी और फीस इज 31st August 2021. यानी आप नेक्स्ट जब असेसमेंट ईयर में इस डेट तक आप अपनी आईटीआर फाइल कर दो. एम आई क्लियर नाउ? यस. गवर्नमेंट कहती है इन केस मिस्टर एक्स बोलता है कि ये तो डेट मिस हो गई. नाउ ही मिस द डेट, he missed the filing date. Now he may ask, गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, अब आप ना 31st दिसंबर 2021 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो. एंड यू वुड बी लाइक ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी देखो आपने लेट फाइल किया है ना, लेट फाइल किया तो आपके ऊपर कुछ फाइन लगेगा.
कुछ पेनल्टीज लगेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? यस और नो? तो ये कुछ इस तरह से प्रोसीजर्स होती हैं, यानी व्हेन इट कम्स टू असेसमेंट ईयर, इट सिंपली मींस इन नेक्स्ट ईयर असेसमेंट इज द ईयर इन व्हिच वी विल पे द टैक्सेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, बट देयर इज ऑलवेज अ स्पेसिफाइड डेट। ऐसे नहीं कभी भी पे कर दिया, नहीं, कभी अगर पे कर भी रहे हैं, देन इन दैट केस यू विल हैव टू पे फीस एंड पेनल्टीज लाइक 5,000, 1,000, 10,000, राइट? दे आर द डिफरेंट केसेस। ठीक है, नाउ ये तो इंडिविजुअल की बात हुई। नाउ इन केस ऑफ कंपनीज फॉर एग्जांपल, अब कंपनीज के केस में, सर हाँ जी बोलिए। सर जो ये आपने डेट बताई है, हम्म। तो ये रियल में यही वाली डेट होती है नहीं, या अभी जस्ट एज दे एन आर नॉट एग्जांपल? करेक्ट, दे आर नॉट द करेक्ट डेट। मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताई है। ओके ओके। नॉर्मली पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं, अभी जब इनकम टैक्स साइट भी काफी नॉर्मल चल रही थी, या बिफोर पेंडेमिक और बिफोर जीएसटी इवन, राइट? I mean, before 4 or 5 years, the income tax date was always remain same, 31st July 2000. I mean, 31st July of the assessment year, right? पहले 31st जुलाई होती थी हमेशा, कि आपको इंडिविजुअल अगर आते हैं तो आपको 31st जुलाई असेसमेंट ईयर में आपको पे करना है टैक्स। लेकिन धीरे धीरे अभी जैसे चेंजेस आ रहे हैं इनकम टैक्स की साइड में भी, इनकम टैक्स साइड में भी देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इवन आई एम नॉट एबल टू फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपर्ली। मैंने भी अभी फाइल नहीं की, अभी भी डेट क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है डेट, राइट? सो देयर आर द केसेस व्हेन द गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द डेट्स, राइट, बाय इंट्रोड्यूसिंग द सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। ठीक है, अब ये जो डेट्स हैं आप इन डेट पे भरोसा मत कीजिए, बट देयर आर द डेट्स। वो डेट्स होती है, मैं आपको प्रॉपर्ली अभी डेट्स नहीं बता रहा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको डेट्स इंट्रोड्यूस करूंगा कि इस डेट के बाद अगर आप फाइल करें तो क्या होगा, इस डेट के बाद आप फाइल करें तो क्या होगा। अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैं आपको सब डेट्स बता रहा हूँ। ठीक है क्लास? ओके सर। नाउ, Yes, sir. Sir, Yes, sir. हाँ जी बोलिए। sir, could you please add Divisha? She got left. She has messaged me like 5 minutes ago. She messaged. दिविशा और कीर्ति। Sir, even Sir, Kirti was there in the meeting sir, earlier. I want to Yes, join it both from actually. another device. That's why. ओके फाइन, ठीक है। देखिए, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इन केस इफ यू हैव गॉट द कॉल्स, प्लीज डोंट टेक द कॉल्स, बिकॉज आई नो व्हेन यू टेक द कॉल देन यू ऑटोमेटिकली लीव द मीटिंग, राइट? ऐसा ही होता है ना? तो कोशिश कीजिए आप कॉल्स ना लीजिए उस वक्त, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट टेक द कॉल्स, इवन आई एम टेकिंग माय लेक्चर्स फ्रॉम माय मोबाइल, फ्रॉम माय लैपटॉप ओनली, बट आई नेवर टेक द कॉल्स। बट अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल कॉलेज का होता है, ओनली देन आई ऑलवेज पिक अप द कॉल। प्लीज कोशिश कीजिए लेक्चर के वक्त आप कॉल पिक ना करें, और अदरवाइज आप नॉर्मली लीव कर जाते हैं। नाउ, नाउ कम टू द पॉइंट, कंपनीज के केस में। अब कंपनी भी एक पर्सन है, अब कंपनीज के केस में भी देयर आर द डिफरेंट केसेस। फॉर एग्जांपल, इफ एक कंपनी है, उसकी ऑडिटिंग नहीं होनी है, अनऑडिटेड कंपनी, उनके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होने। एक कंपनी जिसके अकाउंट्स ऑडिट होने, एंड देयर इज अनदर कंपनी जिसके अकाउंट ऑडिट भी होने, एंड द कंपनी हैज multinational businesses. I mean, the company has international exposure, international business. Now, in each cases, कहीं ना कहीं assessment years में dates change हो जाएंगी। The company which is unaudited, उनको कम टाइम दिया जाएगा assessment year में, less time। जिनका ऑडिटेड होना है, जिसका स्क्रूटनाइज होना है पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाएगा। एंड द कंपनी विच दे आर हैविंग द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, दे आर द इंटरनेशनल बिजनेस, उनको असेसमेंट ईयर में थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाएगा फॉर फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न। एम आई क्लियर क्लास? राइट? Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. फिलहाल के लिए हमें ये समझना जरूरी है, प्रीवियस ईयर इज व्हाट, असेसमेंट ईयर इज व्हाट, राइट? आई होप यू पीपल हैव गॉट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। Yes, sir. Sir. Very good, very good. Shall we move ahead? If you want to take the screenshot, please you can. सर हाँ जी बोलिए। सर आप एक बार आप प्लीज रिपीट कर देंगे लास्ट वाला। क्या क्या पूछना है आपको? ये कंपनी वाला जो आपने एक्सप्लेन किया कि लेस टाइम होता है या फिर हाँ मोर देखिए, देन वाला। फॉर एग्जाम्पल बचे, you are a manager in a company, or you are having the very highest position like board of director, and your company is like which is not required the auditing of your accounts। जैसे ऑडिटिंग की कंपनी लो मेरा थोड़ा भी फिलहाल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इफ आई गिव द एग्जांपल, लाइक आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम, if your yearly turnover is less than 5 crore, it means
योर अकाउंट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट, आपके अकाउंट्स को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस केस में उन कंपनीज को जो आईटीआर फाइल करने का असेसमेंट ईयर में टाइम दिया जाता है कंपेरेटिवली कम दिया जाएगा, इंडिविजुअल से ज्यादा होगा बट ऑडिटेड कंपनीज से कम होगा। बट अ कंपनी लाइक ऑडिट कंपनी जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, they are the very big companies, right? In such a cases, these companies will have more time to file their income tax return. Yes. On the other hand, there's a company which has the international transaction as well. The company has a multiple businesses in other countries as well. उसको थोड़ा और ज्यादा टाइम दिया जाएगा. Basically, what I'm trying to convey the last date of filing the income tax return. इंडिविजुअल्स को नॉर्मली यही टाइम दिया जाता है, 1 या 2 या 3 महीने का टाइम दिया जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का. अब क्लियर है? Yes, yes. ठीक है. नाउ सो वी आर नाउ मूविंग अहेड. स्क्रीनशॉट लेना है और इज इट टेकन? ले लिया सर. ओके. व्हेन आई से, देखिए अभी जो मैं आपको प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर बता रहा हूँ ना, you may contradict my statement and you may contradict with the given example of the TDS advanced taxes, but these are the very generalized statement, general concept of the previous year and assessment year. Previous year in which we earn. Assessment year is what? In which we pay the taxes. As I told you, 2020-21 is a previous year. Previous year because whatever income you have earned in this year, you are going to pay taxes in 2020-22. This is going to be the assessment year. Now the question is कि क्या इस year में आप income earn नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे. Now this year is going to be the previous year. ये year अपने आप में previous year बन जाएगा. For next year, yes or no class? Yes, sir. Yes, sir. Simple सा logic है. तो आपने जब इस ईयर में इनकम कोई भी अर्न की तो फॉलोइंग सब्सिक्वेंट ईयर के लिए दिस विल बी द प्रीवियस ईयर. नाउ इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 2022 23 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब मैं आपको एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा so that we can understand some advanced level concept of the previous year and assessment year. Not advanced actually. For example, मैं अपना ही केस लेता हूँ. There is a faculty in a college, and what college does whenever we get our salary slip, and whenever we get a salary slip, so college what they do, they deduct the TDS, तो टैक्स काट लेते, राइट? जैसे मेरी जो जुलाई मंथ की सैलरी आई, तो जुलाई मंथ की सैलरी में कुछ शायद 11,000 रुपीज टैक्स, राइट? तो जो भी मुझे सैलरी मिली उसमें से 11,000 मेरा टैक्स कट गया, ठीक है? अब यू मे आस्क, सर जो आप बता रहे हैं और जो हम देख रहे हैं वो तो डिफरेंट है. आप कह रहे थे कि आप पूरे साल अर्न करोगे उसके बाद टैक्स दोगे, लेकिन यहाँ तो आपने जुलाई मंथ में अर्न भी नहीं किया, अर्न किया तो साथ के साथ टैक्स कट गया. So these two statements may contradict, or at least it may seem you that these statements are contradictory in nature. Yes or no? लग रहा है ऐसा? Yes, sir. लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा. But these are the exception cases, or you can say बिल्कुल ऐसे ही होता है. प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं, अगले साल उसकी आईटीआर फाइल करनी होती है. आईटीआर आप अगले साल ही फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर में. बट in most of the cases government collects some part of the taxes in the previous year only. गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप क्या करो ना, टीडीएस की फॉर्म में हमें टैक्स दे दो, एडवांस टैक्सेस की फॉर्म में टैक्स दे दो, राइट? तो कहने का मतलब है ये आपकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर इन द कॉन्ट्राडिक्ट नेचर कि आप टीडीएस सभी ले रहे हैं,
जब आपने इनकम अर्न की, आप एडवांस टैक्सेस ले रहे हैं जब आपने इनकम अर्न की, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, असेसमेंट ईयर में तो नहीं हुआ कुछ, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप बाद में असेसमेंट कर लेना पूरा, असेसमेंट ईयर में ये पूरा असेसमेंट करके हमें आईटीआर फाइल करना, बट एटलीस्ट कुछ तो आप हमें टैक्स दो अभी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट है, आप ऐसा मत समझो कि पूरे साल गवर्नमेंट वेट करती है आपके टैक्स का, राइट? ऐसा नहीं होता, because if the government will wait for the entire year, then all the development activities of the project will stop, and then the government will have to wait for the entire year, right? तो गवर्नमेंट टैक्स आपसे सिस्टमैटिकली कलेक्ट करती रहती है। यस, असेसमेंट पार्ट इज ऑलवेज देयर इन द नेक्स्ट ईयर और इन द फॉलोइंग ईयर, राइट? जैसे मेरे केस में मान लीजिए मैंने जुलाई मंथ का टैक्स किया, जनवरी मंथ का टैक्स किया, पूरा टैक्स मतलब हर महीने जा रहा है टीडीएस फॉर्म में, तो मेरा एडवांस टैक्स साथ के साथ जा रहा है। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो टैक्स गया ऑन माई कॉलेज इनकम ओनली, ऑन माई कॉलेज इनकम ओनली, गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया वो 1.5 लाख, ठीक है? मान लेते हैं 1,50,000 is the total tax the government has deducted, or I should rather say the college, my college ERSD college has deducted 1,50,000 rupees taxes in the entire year, ठीक है? अब हो सकता है जैसा है भी, I may have the different incomes as well. For example, I have my dividend income, I have my coaching incomes as well, I have my SOL income और इवैल्यूएशन इनकम्स भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, इवैल्यूएशन। नाउ अब इन सारी इनकम पे नॉर्मली आपका टीडीएस इस रेट पे नहीं कटता जिस रेट पे आपके सैलरी इनकम पे कटता है। अब हो सकता है इसमें से कुछ इनकम पे अभी तक टैक्स नहीं कटा था या मैंने इन इनकम को शो ही नहीं किया था, तो नेक्स्ट ईयर इन असेसमेंट ईयर फ्रॉम अप्रैल 2022 what I will do, I will assess my all the income, I'll file my ITR, I'll file my ITR, तो गवर्नमेंट ने तो मेरा ऑलरेडी कितना 1,50,000 टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है, मैं देखूंगा मेरा एडिशनल टैक्स कितना बना। फॉर एग्जांपल मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बना टोटल टैक्स 1,80,000 and the government has deducted 1,50,000, it means I am required to pay extra 30,000, yes or no class? Yes, sir. तो जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा मैं 30,000 वो पे करूंगा, राइट? आई पे। तो कहने का मतलब क्या है, these are the plain rules of previous year and assessment year. Previous year is the year in which we earn, and the assessment year in which we assess the income. That's why we use the word assess, not the taxes, right? That's why I'm trying to improvise my definition. I hope आपको समझ आ रहा होगा मैं assess word अब use कर रहा हूँ, not the taxes. Yes, class? Yes, Yes, sir. sir. The assessment year is the year in which we assess our income of the previous year or the preceding year. यानी कि टैक्स वर्ड यूज करना यहाँ पे इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि टैक्स तो आप प्रीवियस ईयर में भी दे रहे थे इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस और एडवांस टैक्सेस, राइट? तो इसलिए मैंने यहाँ पे असेस वर्ड यूज कर लिया। आई होप द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर बोथ आर क्लियर टू अस, अच्छे से Yes, sir. सबको क्लियर, राइट? Yes. Sir, हाँ जी बोलिए। sir, in case we do not have extra income, हाँ then we don't have to file the ITR. नहीं ऐसा नहीं है, आपको आईटीआर तो फाइल करनी ही करनी है। देखिए आपको उसके लिए एसएससी का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, याद आ रहा है? इफ यू रिमेम्बर, इफ यू कैन रिकॉल द एसएससी डेफिनेशन, मैंने आपको बताया था एसएससी कौन है। वो पर्सन है जिसको टैक्स पे करना है या जिसको अपनी इनकम असेस करनी है, अपनी या किसी और की। इसलिए एसएससी की जब हमने डेफिनेशन देखी तो हमें पता लगा था वी हैव डीम्ड, वी हैव नॉर्मल एसएससी, बताइए। वी हैव, yes, we have representative as well, we have SSC and Yes, sir. very good. Now look at this,
जब हम एसएससी की बात कर रहे हैं, जैसे ही मेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हुई, फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल इनकम, जैसे ही मेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हुई, I have become the SSC. Now I am obliged to file my income tax return because I have now become SSC. Okay. Now, yes, I am SSC. Actually, I am saying कि if we have filed TDS and we don't have any other extra source of income, हम्म। so we are just good with TDS. So we don't have to file ITR at बच्चे the मैं end वही of बता the रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, Okay, sir. मान लेते हैं आप एसएससी इस केस में हो गए, आपकी इनकम 2.5 लाख थी, और मान लेते हैं आपकी इनकम 12 लाख थी, 12,50,000, और जो भी आपका टीडीएस कटा वो आपका 1.5 लाख कटा टोटल टैक्स, और आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से भी टैक्स आ रहा था 1.5 लाख। आप यही कह रहे हैं ना? Yes, sir. राइट। अब आप बताइए बच्चे, क्या आपको इनकम टैक्स, वो तो टीडीएस जो काटा गया है, दिस टीडीएस इज डिडक्टेड बाय योर एम्प्लॉयर और बाय द पर्सन हु हैड पेड योर पर्टिकुलर इनकम, राइट? बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, 1.5 लाख तो आपके एम्प्लॉयर ने काटा है, बट आपको भी तो अपनी तरफ से अपनी असेसमेंट बतानी होगी ना। व्हाट एग्जैक्टली इज माय असेसमेंट फ्रॉम माय साइड? यस और नो? यू मे हैव द इनकम्स, यू मे नॉट हैव द इनकम, इट डजंट मैटर, राइट? आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। उस केस में आपको बताना होगा कि सर मेरा 1.5 लाख का टैक्स बना, टीडीएस में 1.5 लाख कट गया, आपकी कैलकुलेशन लास्ट में जीरो ही आएगी। आपको इनकम टैक्स आपको कोई और नहीं पे करना, बट यू हैव टू डिक्लेयर इट। एंड हाउ वी डिक्लेयर इट? वी डिक्लेयर इट विद द हेल्प ऑफ द आईटीआर। अब गवर्नमेंट को तो नहीं पता ना कि आपकी अलग इनकम है या नहीं है, बट जैसे ही आपकी इनकम कुछ बनी, आपका टीडीएस पे हुआ नहीं हुआ, आप एसएससी बन गए, और एसएससी बनने का मतलब अब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और टेस्ट देख लेते हैं साथ में। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, बट वी कैन नाउ डिस्कस अगेन। ओके, आई एम चेंजिंग माय स्क्रीन नाउ। चला है? Yes, sir. आगे देख। अब हम एक मिस्टर भाई की बात कर लेते हैं। देयर इज मिस्टर भाई, हिज इनकम, नॉर्मल इनकम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेशल इनकम, ध्यान रखना मैं नॉर्मल इनकम की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल इनकम जिसपे स्लैब रेट से जो इनकम टैक्सेबल होती है, स्लैब रेट, नॉर्मल स्लैब के हिसाब से ही हैज इनकम ऑफ ₹2 लाख, एंड एज पर आईटी एक्ट, no taxes, no taxes up till 2,50,000। 2.5 लाख से पहले आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर बाय क्या एसएससी है इस केस में? बताइए। कैन वी कॉल मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एज दी एसएससी? No. बताइए, नो और यस? No, sir. No, sir. नेक्स्ट केस, नेक्स्ट सिचुएशन, मिस्टर वाई, अगेन मिस्टर वाई, इनकम 2 लाख, अगेन नॉर्मल इनकम की बात कर रहा हूँ। सेम रूल, बट ही फाइल्स द इनकम टैक्स। कोई मना थोड़ी करेगा, पोर्टल ये थोड़ी बोल देगा कि भाई आप नहीं भर सकते इनकम टैक्स रिटर्न क्योंकि आपकी इनकम 2 लाख है। कोई बात नहीं, भरो। आपकी इनकम 10 रुपए है, फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरो, कौन मना कर रहा है? हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी इनकम 1 रुपया भी है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, भरो। आपकी इनकम 0 है, भरो, कोई दिक्कत नहीं, कौन मना कर रहा है? नाउ लेट मी नो, ही कैन फाइल, लेट मी नो, आई मीन आई कैन टेल दिस इफ ही फाइल्स इनकम टैक्स रिटर्न, कर सकते हैं। कम इनकम है फिर भी कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, इफ ही इज एसएससी और नॉट? Yes, 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 sir. sir. Yes. Yes. He becomes a normal SSC. ओके, एनी वन ऑफ यू जो ये कहेगा कि नहीं ये एसएससी नहीं है, अगर आप में से कोई है प्लीज, देखिए, आई एम नॉट ग्रिलिंग एनीवन, आई एम जस्ट, वी कैन इनहांस आवर लेवल ऑफ डिस्कशन ऑफ क्लास, राइट? अगर ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे लगता है कि भाई एसएससी नहीं होना चाहिए, आप प्लीज मुझे बताइए, देन आई विल एक्सप्लेन।
एनी वन ऑफ यू? किसी को लगता है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई एसएससी नहीं होने चाहिए अगर वो फाइल भी कर देते हैं इनकम टैक्स रिटर्न? क्योंकि सर उसकी इनकम के अगेंस्ट मतलब प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही होंगी आईटीए एक्ट के अंडर, आई Okay. गेस। तो ये एसएससी नहीं होने चाहिए, राइट, आपके हिसाब से? शायद, ओके, पता नहीं। देखिए जब आप प्रोसीडिंग की बात करते हैं ना, प्रोसीडिंग का मतलब ये नहीं होता, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये चीज कंफर्म की थी, व्हेन वी रीड इनकम टैक्स नॉर्मल डेफिनेशन, राइट, एक सेकंड, लेट मी रीड द डेफिनेशन ऑफ एसएससी, नॉर्मल एसएससी डेफिनेशन. It says any person against whom proceeding under Income Tax Act are going on, irrespective of the fact whether any tax or other amount is payable by him or not. इस पहली लाइन से ही क्लियर हो गया. If you read this very first sentence, it says any person against whom proceeding under Income Tax Act are going on, irrespective, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे टैक्स देना है या नहीं देना है. देखिए प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? प्रोसीडिंग का मतलब है once he files the income tax return, now the income tax procedures will start. इसका मतलब उसकी इनकम को अब असेसिंग ऑफिसर देखेगा, वो सैम्पलिंग वे में होता है, वो अलग चीज है. उसको अब डिक्लेरेशन देनी होगी, उसको वेरिफिकेशन करनी होगी. वंस सेक्शन, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द सेक्शन, आपके पास एक इंटीमेशन आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से. ये सब क्या, ये प्रोसीजर का ही तो पार्ट है ना. आर गेटिंग माय पॉइंट? यानी once you have filed your income tax return, it means the procedures have now procedures have started. Against का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, इसका मतलब his income tax return is now processing, right? It is under the procedure. Are you getting my point, class? समझ आ रहा है? इसका मतलब है once he files income tax return, no matter he has income or not, he becomes the assessor. अब क्लियर है बच्चे? राइट. अच्छा देखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, प्लीज फर्स्ट लेट मी नो योर नेम, राइट, क्योंकि मुझे पता नहीं लगता कि आप, और बिना नाम के फिर मैं स्टूडेंट को फिर कैसे बोलूँ लाइक कि कौन स्टूडेंट है नहीं है, राइट. तो प्लीज डू इट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी योर नेम्स. तो प्लीज कोशिश ही कीजिए. क्या Yes, sir. नाम पहले बताइए, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए. नाम, इस तरह से मुझे आप लोगों के नाम भी याद रहेंगे, कौन स्टूडेंट एक्टिव है क्लास में, कौन नहीं है. मिस्टर वाई, 2 लाख इनकम, नॉर्मल इनकम, कुछ महीने काम किया एक ऑफिस में और उसके एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट लिया, टैक्स काट लिया 10,000. बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है. कुछ प्रोविजंस हैं सेक्शन 194 के और टीडीएस के प्रोविजंस हैं, वो हम बाद में बात करेंगे उनके बारे में. ऐसा हो सकता है. आप बोलेंगे सर 2 लाख ही तो कमाए फिर भी टीडीएस काट लिया, कुछ ऐसा नहीं होता. एक असेसमेंट ईयर में इवन अगर आपकी 30,000 से ज्यादा की इनकम भी बढ़ जाती है, अगर इन केस ऑफ प्रोफेशनल इनकम, फॉर एग्जाम्पल मैं आप पेपर चेक कर, इफ आई वैल्यूएट योर आंसर शीट्स, तो क्या ये मेरी सैलरी इनकम है? नहीं है, ये मेरी सैलरी इनकम नहीं है, ये मेरी प्रोफेशनल इनकम है. दिस इज माई प्रोफेशनल इनकम. मेरी सैलरी इनकम सिर्फ कॉलेज से जो मिलती है वो मेरी सैलरी इनकम है, ठीक है. इसके अलावा जो भी मुझे पेपर सेट करने के या पेपर इवेल्युएट करने के या कोई और फीस मिलती है, दे आर माई प्रोफेशनल इनकम. अब प्रोफेशनल इनकम का सीधा सा रूल है कि इफ यू अर्न मोर देन 30,000 इन एन असेसमेंट ईयर, तो आपका टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा एट द रेट, नॉर्मली इट इज 10%, ठीक है. तो वो कट गया, कोई दिक्कत नहीं. समझ आया? कोई इसमें दिक्कत नहीं है अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, सबको पॉइंट क्लियर है ये? Yes, sir. राइट, Yes, sir. ओके फाइन, Yes, sir. ठीक है. अब आप मुझे बताइए, मिस्टर वाई 2 लाख रुपए इनकम पे टीडीएस कट गया. अब बताइए मिस्टर वाई की सिचुएशन क्या है, एसएससी है या नहीं है? थिंक अबाउट इट. Sir, if you file, yeah. If he files, but he will have to file the income tax return once TDS is deducted. अब आप खुद सोचिए मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मिस्टर वाई का टैक्स 10,000 का जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था, राइट. But since his employer has deducted 10,000 rupees tax, he will now require to file income tax return and he will say, भाई गवर्नमेंट देख लो मेरे पास तो 2 लाख की इनकम है,
फिर भी टीडीएस कट गया, गवर्नमेंट बोलेगी लो वापस लो इन द फॉर्म ऑफ रिफंड. सो ही विल file income tax for what? For refund. Yes or no, class? Yes. Right. Yes. Let me read the normal SSC definition again. Next point of it. It says any person who has sustained losses and filed return of losses. Any person by whom same amount of interest, tax or penalty is payable. Any person who is entitled to refund of taxes under this act. क्या refund? थर्ड पॉइंट कहता है ये नॉर्मल एसएससी की डेफिनेशन का. इट सेज कि इवन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड के लिए भी फाइल करते हैं ना तो आप एसएससी. एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपको समझना जरूरी है. तब आप समझते हैं जब आप पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाते हैं. सो आई होप दिस पार्ट ऑफ द एसएससी हु इज और हु इज नॉट एसएससी. राइट. एक और केस, लास्ट केस. मिस्टर वाई, इनकम 5 लाख. बोलते हैं मैं नहीं फाइल करता, क्या करोगे? इसे मैं फाइल नहीं करता, 5 लाख की इनकम में नहीं करता. मिस्टर वाई एसएससी है या नहीं है? Yes, sir. है. Check. Yes. वेरी गुड. ही इज एसएससी नो मैटर वेदर ही फाइल्स और नॉट. भाई एसएससी तो है वो. क्योंकि जब एसएससी है तभी तो अब इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, तभी तो इनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा. अगर एसएससी नहीं है तो क्या एक्शन लिया जाएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ठीक है. So this is something we have done of the previous year and assessment year. Now next concept. Shall I remove it? Yes, sir. Fine. Now next. There are some cases when previous year income is taxable in previous year only. Previous year income is taxable in previous year only. गवर्नमेंट बोलेगी भाई देखो हम ना असेसमेंट ईयर तक का वेट नहीं करेंगे. यस क्लास, समझ आ रहा है? यानी कि you will earn in the previous year and you will assess your income in the previous year only. It means your previous year is now become your assessment year. You getting my point? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि ऐसे कुछ केसेस की हम बात कर रहे हैं. We are talking about those exception cases when you will earn in the previous year and your income will be assessed in previous year में earn करो. Previous year में वो इनकम क्या हो जाएगी? असेस हो जाएगी. अच्छा, इसे पता क्या लग रहा है? When someone says नहीं नहीं वेट नहीं करना अभी देना है, क्या पता लग रहा है? It simply means तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे. Yes or no? कुछ ऐसा लग रहा है? भरोसा नहीं है. भरोसा नहीं. Exactly. There's a case of Involvement. between the parties like the person who is SSC and the government or the income tax department, I should say. It simply means when there is a very less possibility that you will return or you won't be able, the government won't be able to trace you down in case if they wait for the assessment year. It means it's a case of distrust between the parties. यानी कि कुछ ऐसे cases जिनकी वजह से if they are the cases then you will have to pay the taxes when you will earn the money, right? There are 5 exception cases. 5 exception cases.
समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. राइट। ये 5 एक्सेप्शन केसेस क्या है? दिस इज योर होमवर्क। ये आप थोड़ा सा देखें। ये 5 एक्सेप्शन केसेस क्या होते हैं जब आपकी इनकम उसी साल इमीडिएटली क्या हो जाती है? टैक्सेबल। सिंपल सा एक आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यू आर लीविंग अ कंट्री फॉर indefinite टाइम पीरियड एंड यू हैव नो इंटेंशन टू कम बैक। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पीछे पीछे थोड़ी भागेगा। Are you getting my point? Income tax department is not going to follow you or not going to trace you down if you are leaving a country for a longer period of time and you have no intention. For example, if you are going for a country like if you are leaving the country permanently, in such a case, नहीं आप वापस नहीं आने वाले, हम वापस वहां पे कैसे जाएंगे? फिर काफी सारे इश्यूज होते हैं. So government will ask for the taxes in the same year when he will about to leave the country. Are you getting my point, class? Yes, sir. ऐसे कुछ Yes, 5 sir. केसेस हैं जो आपको देखने हैं और जो आप देखेंगे और उसको हम डिस्कस कर लेंगे. डिस्कस मतलब आई विल आस्क यू पीपल कि आपने किया है या नहीं किया है. ठीक है? ओके सर. Yes, sir. तो यहाँ तक आपको क्लियर है प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है और 5 एक्सेप्शन केसेस क्या है. ठीक है? Yes, sir. Very good, very good. Now, in next class, we are now going to discuss a very, very important thing, basis of taxes, right? Basis of Dikansha. Was she there in the class earlier? Yes, sir. Okay. आज की क्लास में समझ आया आप सबको? Yes, अच्छा sir. लगा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes, क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है? इनकम टैक्स इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी आपको बिकॉज I believe in providing the basis. If I provide you the basic, only then we can move ahead and we can do a complex things, right? And that's why Yes. my way of presentation is bit different. That's how I teach. उसके बाद तो हम जब करेंगे आपको खुद ही नहीं पता लगेगा कि हम कितने आसान डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है? यस निकिता, प्लीज आस्क. सर आपने एक केस बताया था जिसमें अगर 5 लाख की इनकम थी एंड उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो देन आल्सो ही इज इन एसएससी. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर उसकी इनकम 5 लाख है एंड उसका जो टैक्स डिडक्ट होता है टीडीएस फॉर एग्जांपल 50,000 डिडक्ट होता है एंड देन हम लोग वो असेसमेंट ईयर में जब वो अपनी असेसमेंट करने के बाद टैक्स निकालता है वो 30,000 आता है तो उसको 20,000 का रिफंड मिलेगा. निकिता एक सेकंड जस्ट बचे. हाँ, प्लीज लेट मी नो द इंफॉर्मेशन अगेन सो दैट आई कैन राइट इट डाउन ऑन माय स्क्रीन. बताइए. या सर तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर एक्स की इनकम है 5 लाख एंड अच्छा 5 लाख, उसका ठीक जो है. और उसका टीडीएस जो कटता है वो 50,000 कटता है ठीक है. एंड देन असेसमेंट ईयर में जो वो एक्स्ट्रा इनकम उनसे उसका जो टैक्स होता है वो 30,000 ही होता है तो क्या उसको 20,000 का रिफंड मिलेगा. एक्स्ट्रा इनकम पर क्या आप बता रहे हैं? एक्स्ट्रा इनकम पर व्हाट? सर आपने जो असेसमेंट ईयर में नहीं बताया था कि अगर असेसमेंट ईयर में भी हम टैक्स जो देखते हैं जो आपने एग्जांपल में बताया था कि 1,50,000 का टीडीएस कटा एंड देन टैक्स बना 1,80,000 तो उसे राइट. 30,000 और पे करना पड़ेगा. हाँ तो ठीक अगर है. उसका 1,50,000 से कम का टैक्स बनता है तो उसको रिफंड नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? रिफंड तो मिलेगा. वो हमने केस देखा ना, राइट. बच्चे सिंपल सी बात है. कॉलेज ने मेरा टैक्स फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको कुछ बिकॉज the problem is I cannot tell you everything in a very single class, right? तो मैं समझ सकता हूँ कि डाउट्स ही आएंगे इस तरह के, बट ट्रस्ट में ये धीरे धीरे सारी चीजें आपके क्लियर होंगी इन अ सिस्टमैटिक वे. बिकॉज इनकम टैक्स को अगर मैं एक साथ ही आपको बताने लगूंगा कि कैसे आपका रिफंड बनता है कैसे नहीं बनता है तो आपको अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. ठीक है? ओके निकिता, इन अ सिंपलेस्ट वे व्हाट आई कैन से फॉर एग्जांपल निकिता मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ. इफ आई अर्न फॉर एग्जांपल 15 लाख इन अ ईयर, 15 लाख. कॉलेज ने तो क्या किया, कॉलेज ने मेरा टैक्स काट दिया 15 लाख के हिसाब से. ठीक है निकिता? यस. यस. कॉलेज ने मुझसे पूछा कि भाई सर आप हाउस रेंट अलाउंसेस का डिडक्शन एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं अगर आप रेंट पे रहते हैं. मैंने कहा नहीं मैं खुद ले लूंगा. ठीक है? मैं नॉर्मली ऐसे ही करता हूँ.
I don't ask the college authorities कि मैं कॉलेज को सबमिट कर रहा हूँ नहीं कर रहा. I always file it on my own. ठीक है. कॉलेज ने कहा कि सर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया पीपीएफ में, एलआईसी में, या आपके ट्यूशन फीस आपके बच्चों की जाती है. आई वाज लाइक कि नहीं. ठीक है. मैंने किया भी है. आई डोंट टेल देम. ठीक है. तो वो क्या मानेंगे, वो ये मानेंगे कि मेरी इनकम 15 लाख है, उसके हिसाब से टैक्स लगाएंगे निकिता. यस. Yes, sir. ठीक है. जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बारी आएगी, व्हाट आई विल डू व्हेन आई विल फाइल, मान लेते हैं कि मैंने 1,50,000 पीपीएफ में भी दिया है, जिसमें मुझे डिडक्शन मिल सकती है, यानी मेरी टैक्स लाइबिलिटी कम हो सकती है. अब मैं एचआरई की एग्जाम्पशन की कैलकुलेशन अपने हिसाब से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं. मैंने किया. मैंने बाकी कुछ एग्जाम्पशंस ली. मैंने मेडिकल अपने पेरेंट्स का और अपना कराया, मैंने उस पर एग्जाम्पशन लेनी है, डिडक्शन लेनी है. 50,000 का मेडिकल हुआ, उसमें मुझे एग्जाम्पशन लेनी है. मैंने लोन लिया हुआ है, मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना है, मुझे उसकी एग्जाम्पशन लेनी है. बट मैंने कॉलेज को कुछ नहीं बताया. ठीक है निकिता. व्हेन आई विल फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न माई ओन, मैं फाइल करते हुए ये बताऊंगा कि ये मेरी सारी एग्जाम्पशन है, ये सब एग्जाम्पशन है, ये सब है. तो कहीं ना कहीं निकिता, डोंट यू थिंक कि मेरा टैक्स कम बनेगा मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से. Yes, sir. राइट. कॉलेज ने जो टैक्स डिडक्ट किया है वो हायर इनकम पे किया है. और मैंने जब गवर्नमेंट को बताया कि दीज आर माई डिडक्शंस बिकॉज आई हैव डन दिस और दैट, आई हैव इन्वेस्टेड समवेयर, आई हैव स्पेंट दिस मनी, आई हैव टेकन माई हेल्थ इंश्योरेंस, आई हैव टेकन माई मेडिकल इंश्योरेंस, तो मेरा टैक्स कम बनेगा. मान लेते हैं कॉलेज का टैक्स बन रहा था 15 लाख पर 1.5 लाख फॉर एग्जाम्पल, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बन रहा है 1 लाख, क्योंकि मैंने अपना टैक्स मैनेज कर लिया. मैंने अपने टैक्स को क्या कर लिया, अपनी टैक्स मैनेज करके मैंने अपनी टैक्स लाइबिलिटीज को कम कर लिया. नाउ 50,000 शुड बी द रिफंड निकिता. Yes, sir. I'll get the refund with interest also. ठीक है. Okay, sir. बट ये चीजें समझेंगे कब, जब हम 80C 80U पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे अलग अलग एग्जाम्पशंस की कहाँ मिलती हैं, कैसे मिलती है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, क्या क्या एलिजिबल कंडीशंस होती हैं, वो हम आगे वाले क्लासेस में देखेंगे. यस मानस भी बोले. Thank you, sir. सर एक और केस का मुझे पूछना था कि सर इफ समवन लाइक मिस्टर एक्स has only one source of income and उनका TDS कट रहा है, does he still need to file the ITR next year in the assessment year? हाँ Like डेफिनेटली. if he one. जैसे मैं अपना ही केस बताता हूँ, मैं अपने एग्जांपल इसलिए देता हूँ बिकॉज आई नो कि मैं उससे काफी अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ. When I started my college for the first time in 2017, so I started with a lower post, but I actually got promoted to this post in 3 years. So when I started in Motilal College, my post was something like I was getting monthly. I was getting my income on the basis of per day classes. Whatever the class I was taking, उसके हिसाब से मुझे पेमेंट मिलती थी. ठीक है, जिन्हें गेस्ट लेक्चरर कहा जाता है. ठीक है. तो मेरी इनकम जो बनती थी उस इनकम को कहा जाता है प्रोफेशनल इनकम. मानस भी क्लियर है, सबको Yes, क्लियर sir. है. राइट. तो जो गेस्ट लेक्चरर को जो सैलरी मिलती है, जो इनकम मिलती है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोफेशनल इनकम, नॉट द सैलरी. वो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा सेक्शन 15 में जब हम सैलरी करेंगे, कैसे पता लगता है कि सैलरी है या दूसरी इनकम है. तो मेरी प्रोफेशनल इनकम थी. मेरा केस क्या हुआ फर्स्ट ईयर में, इन वेरी फर्स्ट ईयर माई टैक्स वॉज अराउंड 20,000 वॉज माई टैक्स. 20,000 का टैक्स बना. लेकिन मेरी इनकम जो बनी वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आ रही. ठीक. माई इनकम वॉज अराउंड 2,30,000 के आसपास थी, उसमें मेरा 20,000 टैक्स बना. तो मानसवी आप बताइए क्या मुझे टैक्स पे करना था? No, sir. नहीं. मेरा टीडीएस कटा. सिंस माई टीडीएस वॉज डिडक्टेड, तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, क्योंकि मुझे 20,000 वापस चाहिए था ना मानसवी. सुनो. Yes, sir. Yes, So sir. I filed my income tax return, and within a 2 months, when I filed it, I got with interest, I got my 20,000 rupees back. ठीक है मानसवी. Okay, sir. So, but like, what I want to convey is that if someone is earning like maybe 5 lakhs or 6 lakhs, like the income where they have to pay the taxes and they're paying it through TDS, it's and they don't have any additional source of income, like they are not earning dividend or they're not earning through any other source. So, uspe bhi do they like have to pay anything else? Then they have already paid their amount of tax, right?
ठीक है पेड। ये मैंने कि समझाया भी था ना कि आपका फॉर एग्जांपल इफ द टैक्स लायबिलिटी वाज 180,000 एंड बाय टीडीएस योर एम्प्लॉयर हैज ऑलरेडी करेक्टली डिडक्टेड 180, तो इसका मतलब देखा जाए वर्चुअली यू नीड नॉट टू पे एनी टैक्सेस, बट बच्चे एट द सेम टाइम you will from your side you will verify, or you will convey to the government that these were my income, I am filing my income tax return, these were my incomes and these are my taxes, therefore I need not to pay any taxes. That is the main role of the income tax return. वो तो आपके एम्प्लॉयड ने किया, बट गवर्नमेंट को नहीं पता ना कि आपकी दूसरी इनकम थी या नहीं थी, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा. इट्स द डिक्लेरेशन. इनकम टैक्स Okay, रिटर्न sir. इज नॉट द डिक्लेरेशन, राइट? When you will declare, गवर्नमेंट will say ठीक है कोई बात नहीं, इतना है कोई बात नहीं, आपको भी टैक्स नहीं देना, जो आप पे कर चुके हैं वो ही आपका टैक्स था. yes आशीष बोले. So, for example, like I have a corporate job, for example, and for some reason I get fired like in December. So, am I still liable to pay tax like in the assessment year? हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल इन सच ए केस यू हैव वर्कड इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months only, right? So in for a period of 3 months, if you are not doing anything, obviously you'll have to pay your income tax uh, in assessment year. अब ये पूछ रहे हैं ना. Yes, sir. हाँ, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, आपने एक भी दिन काम किया, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, मैं अभी नहीं बताना चाहता. ये सेक्शन 15 है बेसिकली सैलरी वाला पार्ट. आपने एक भी दिन काम किया, सैलरी नहीं मिली, पूरे साल काम किया, सैलरी नहीं मिली, टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा. वो केसेस अलग हैं. ठीक है Okay, आशीष? sir. Thank you, sir. हाँ, हम टाइम के साथ चीजें देखेंगे. ठीक है. Yes everyone, I hope the ideas are clear to every one of you. Yes, sir. समझ आ रहे हैं? Very Yes, good. sir. Very good. ठीक है. Now you will leave now, then we will meet 1:30. आप लोग भी लंच कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ. ठीक है. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir. Thank you, sir. हाँ जी बोलिए.